Hello बच्चों. So once again we are starting a new chapter and today's chapter is acid, bases and salts. So without wasting time, let's start. Acid, bases and salts are the substances which are used in our daily life. है ना बच्चों? तो हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों की डे टू डे लाइफ में कि कुछ सब्सटेंसेस बिटर होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस सोर होते हैं. Why they are bitter or sour? Because either they are having acid in them or bases are present in them, which provide them bitter or sour taste. So there are certain indicators which are used to find out whether a substance is acid or base. So indicators are used as I told you. These are different type of indicators. A lichen, red cabbage, turmeric, hydrogenia, petunia, geranium. So these are different type of indicators. But they are all natural sources. So we can call them natural indicators. Okay. So how to check or how to obtain a indicator? A very simple activity we can perform. Litmus solution. आप सबने सुना होगा लिटमस. So litmus is a purple dye which is extracted from a lichen. It is extracted from a lichen, or we can say a thallophyte. Thallophyta. So when a litmus solution is neutral, the color is purple. But acid changes the purple color of blue litmus to red color, and base और alkali, हम बाद में डिफरेंस बताएंगे क्या होता है इसका, changes red litmus to blue. Okay, so in this way we can judge whether it's a acid or base with litmus test. Nowadays these paper strips are also available. So with the help of these we can perform this test. You might observe sometime a stain of curry की सब्जी है उसका दाग आपके कपड़ों पे लग जाता है, और जैसे ही वो दाग लगता है इट टर्न रेडिश, है ना, या रेडिश ब्राउन हम कह सकते हैं. रेडिश ब्राउन कलर में वो चेंज हो जाता है जब हम उस पर साबुन लगाते हैं. बिकॉज करी में क्या है, करी में टर्मरिक है. ओके, टर्मरिक, और जब इसको हम वॉश करते हैं सोप के साथ ये मिक्स हो जाता है तो इट टर्न्स येलो अगेन. So methyl orange, phenolphthalein, they are synthetic indicators. तो नेचुरल इंडिकेटर्स की हमने बात करी, लिटमस है, टर्मरिक है, लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स है जो प्रिपेयर किए जाते हैं एंड दे आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स लाइक मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्थलीन. इज इट क्लियर व्हाट आर इंडिकेटर्स? ओके. Now, in laboratory, you might have observed a large number of chemicals present there. Okay? Now, you can perform a very simple activity in your lab next time. Put a drop of solution
in a watch glass. One chemical at a time, and test with different indicators. And observe your results, and you can write your results in comment section also. So hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, different type of acid you can see here, and these are different bases, sodium hydroxide, calcium hydroxide, and so on. So just perform this simple activity with the help of your teacher. So these are the results you will observe after performing that test. For example, HCl, a strong acid, रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, बट इट चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. With phenolphthalein solution, it remain colorless but changes methyl orange solution to pink red. Similarly, common base sodium hydroxide, it changes red litmus to blue, but blue litmus paper remain same. Likewise, phenolphthalein red को पिंक कलर में चेंज कर देगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर ही रिटेन कर देगा. सो लाइकवाइज डिफरेंट टेस्ट यू कैन परफॉर्म. नाउ व्हाट आर olfactory indicators? आपके एनसीईआरटी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है olfactory indicators. वो substances जिनका ऑर्डर, जिनकी गंध कह सकते हैं चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. Substances whose odor, which changes odor in acidic or basic medium, are known as olfactory indicators. So onion, clove and vanilla essence are common olfactory indicators. हम एक सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि आप फाइनली चॉप्ड अनियन लें और उसको एक क्लीन क्लॉथ में या पेपर बैग में रैप करके रख दें और उसको टाइटली एयर टाइट कर दें और फ्रिज में रात भर रख दें. उसके बाद इस क्लॉथ का पीस लें और उसकी स्मेल ऑब्जर्व करें, फील करें. अब इसमें कुछ बूंदे डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, एसिड की हम कह सकते हैं, डालें और दूसरे में डाइल्यूट NaOH बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. दोनों स्ट्रिप्स को हमने वॉश करना है विद वाटर. rinse with water, wash with water and check their odor. क्या कलर, क्या डिफरेंस आपको पता चला, क्या ऑब्जर्व हुआ? जो ऑर्डर है अनियन की वो बेस के केस में गायब हो जाती है, NaOH के केस में गायब हो जाती है, लेकिन एसिड के साथ ये अनचेंज्ड रहती है. ठीक है. इसी तरह आप परफॉर्म कर सकते हो वनीला एसेंस के साथ या आप क्लोव ऑयल के साथ भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये तो बात हो गई इंडिकेटर्स की. अब हम आते हैं अपने एसिड्स पे. अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम पे अलग कंसेप्ट दिए कि व्हाट इज एसिड इन केमिस्ट्री. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. राइट. जबकि ब्राउनस्टीड लवरी ने कहा कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोटॉन डोनर्स. एग्जांपल उन्होंने वाटर का दिया कि इसका डिसोसिएशन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का इन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. एंड लुईस एसिड कंसेप्ट के हिसाब से एसिड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, so an acid is a chemical
दैट कैन डोनेट प्रोटोन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर. होप इट इज क्लियर नाउ. Arrhenius concept, Brownstein-Lowry, and according to Lewis concept. So what are the characteristics of a acid? Acids produce hydrogen ion or hydronium ion in water, right? They sour in taste, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. They conduct electricity when placed in aqueous solution. रिएक्ट विद मेटल्स, रिएक्शंस हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. होप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है इसको चेक करने के लिए. पीएच लेस देन 7. अगर हम पीएच स्केल पर इसको मेजर करें तो 7 से नीचे के जो भी सब्सटेंसेस हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड 7 से ऊपर वाले जितने भी हैं दे आर बेसिक और एल्कलाइन इन नेचर. वाटर के बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे. दिस रिएक्शन विल बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके. नाउ एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स बेस्ड ऑन सोर्स. नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड जो ऑब्टेन होते हैं नेचर से डायरेक्टली, दे आर नेचुरल एसिड लाइक लेमन जूस, सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं. मिनरल एसिड्स का सोर्स मिनरल्स होते हैं, वहां से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस्ड ऑन देयर कंसंट्रेशन, वाटर में सोल्युबिलिटी के बेसिस पे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड. एसिड अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो कंसंट्रेटेड. उल्टा अगर आप कर देंगे, एसिड कम हो जाएगा एंड वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, देन दे आर नोन एज डाइल्यूटेड एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, कंप्लीट डिसोसिएशन अगर होता है, देन इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. और कम डिसोसिएशन होता है, देन इट इज नोन एज वीक एसिड. देखिए बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के. HCl फॉलोड बाय नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन. आपको याद रखने हैं सारे. एंड वीक एसिड्स में ऑक्सैलिक एसिड से लेकर फॉर्मिक एसिड्स तक आ जाते हैं. ये डाइल्यूशन का, कंसंट्रेशन का आप देख सकते हैं. ज्यादा एसिड तो कंसंट्रेटेड, कम एसिड तो डाइल्यूटेड एसिड. बड़ा इजी है. सिंबल्स आप हाइड्रोजन आयन मींस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के यहां पर देख सकते हैं. नाउ व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज? दीज आर नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड. एसिटिक एसिड बच्चों का फेवरेट है. आजकल बहुत सारा फास्ट फूड वो खाते हैं, तो विनेगर, सिरका जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है. जब चींटी हमें काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है. एप्पल में मैलिक एसिड होता है. आपने देखा होगा अगर हम एप्पल को कट करके या बाइट करके रख देते हैं, थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन सा कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैलिक एसिड. मिल्क कंटेन लैक्टिक एसिड, लैक्टोज. ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड. लेमन, या हम कह सकते हैं हमारे जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं दे कंटेन सिट्रिक एसिड. एंड इन टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड. ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम आते हैं रिएक्शन पार्ट पे. ये सारे बेसिक्स थे. लाइकवाइज बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इजीली याद रह सकती है. नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स. तो पहली रिएक्शन जो आपकी बुक में बच्चा लोग दी हुई है, दैट हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, है ना. ये एक्टिविटी भी वहां पे दी हुई है. बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है कि इस तरह से एक सेटअप करना है और आपको लेना है 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में. एंड यू नीड टू पुट सम जिंक ग्रेन्यूल्स. इसमें जिंक ऐड कर दिया हमने. तो जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस पर बबल्स
एयर के बबल्स बनते हैं. एक्चुअली दीज बबल्स आर हाइड्रोजन बबल्स. ठीक है, ये हाइड्रोजन के बबल्स हैं. अब इस हाइड्रोजन गैस को हमें पास करना है इस सोप सॉल्यूशन में से. ठीक है, और जब एक बर्निंग कैंडल हम उसके पास लेकर जाएंगे तो पोप साउंड इज प्रोड्यूस. इस तरह की साउंड प्रोड्यूस होगी. सो दिस इज नोन एज पोप टेस्ट. सॉरी, पोप टेस्ट. क्लियर? You can repeat this test with other chemicals. HCl के साथ कर सकते हैं आप, HNO3 के साथ परफॉर्म कर सकते हैं आप, CH3COH के साथ इस सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं. स्ट्रोंग एसिड्स के साथ बबल्स ज्यादा फास्टली आएंगे, विग्रसली आएंगे. एज कंपेयर टू वीक एसिड्स. लेकिन जिंक ऐसा नहीं है कि वीक एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता. जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद वीक एसिड्स. ठीक है, बट जो बबल फॉर्मेशन है या गैस फॉर्मेशन है, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी, गैस फॉर्मेशन इज स्लो. क्लियर? सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, तो क्या होगा? क्या होगा? Salt is formed. Acid reacts with metal to produce salt. ठीक है, and hydrogen gas is released, which can be confirmed by this Pope test. अब बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं? हमने एसिड तो देख लिया. हाउ दिस बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स. ठीक है, अब यहां पे हमने क्या लिया? ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने ले लिए एक टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, एंड हमने उसमें क्या ऐड किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और उस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया. जिंक ग्रेन्यूल्स लिए प्लस NaOH, हीट किया हमने उसको टेस्ट ट्यूब में. ठीक है, और थोड़ी देर के बाद वही एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर दिया जो अभी थोड़ी देर पहले किया था. तो क्या होगा? यहां पर भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. तो नेट रिएक्शन विल बी, यहां पे बनेगा सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड. लेकिन सारे के सारे मेटल्स के साथ बेसिस की ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है. आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे. राइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं? आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी बुक में हर रिएक्शन के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों. तो यहां पे भी इसके केस में भी है कि हमने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें उसी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ऐड कर दिया. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें ऐड कर दिया. अब दोनों रिएक्ट करेंगे. एक टेस्ट ट्यूब में ये था हमारे पास, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास ये था सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक, अब इसमें हमने ऐड कर दिया HCl एसिड, एंड सेम हियर dilute HCl is added. What will happen? In test tube A, this reaction will take place, while in test tube
बी बाइकार्बोनेट के साथ HCl या एसिड इस तरह से रिएक्ट करके सोल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, यहां पर क्या कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड। पहले के टेस्ट में क्या रिलीज हो रहा था? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब जो बना था हमारे पास, उसमें से CO2 पास करेंगे। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना था उसमें से हमने क्या पास कर दिया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था इसमें से हमने CO2 गैस पास की। ये लाइम वाटर है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। और ये क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और एक्सेस अगर हम इसमें से CO2 पास करेंगे, एक्सेस CO2 इसमें से अगर हम पास करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट में से, तो वाटर क्लियर हो जाएगा। वाटर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बन जाएगा? सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हाउ मेटल कार्बोनेट एंड bicarbonate reacts with acid, they form salts and carbon dioxide gas is released. Okay, अब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की हमने बात कर ली कि सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल, these are different forms of कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स हैं ये। ठीक है, सो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ये आपके एनसीईआरटी के नेक्स्ट रिएक्शन थी। अब दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? एसिड और बेस दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? तो हमने क्या कर लिया है, हमने टेस्ट ट्यूब्स में NaOH और NaOH ले लेते हैं, यही लिख देता हूं मैं। हमने लेना है एक बेस NaOH डाइल्यूटेड, प्लस उस टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दिया ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein. इट इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये कैसा हो गया? पिंक कलर का हो जाता है। अब इसमें अगर HCl ऐड करते हैं, इसमें हमने HCl ऐड करना है ड्रॉप वाइज, तो कलर डिसअपियर हो जाता है। कलर डिसअपियर हो जाता है। सो कंफर्मेशन के लिए दोबारा से कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दीजिए फिनोप्थिलीन की, फिर से कलर रीअपियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो बेस का इफेक्ट था वो किसने खत्म कर दिया? HCl ने। NaOH जो कलर रिएक्शन शो कर रहा था, जब हमने उसमें एसिड ऐड कर दिया तो वो नलिफाई हो गया। It means acid and base reacts and this reaction is known as neutralization reaction and they form salt. So base and acid react to form salt. So neutralization reaction होगा। आपने सुना होगा कि घर में कोई हैवी मील ले लेता है, स्पाइसी फूड ज्यादा खा लेता है, तो कहते हैं एसिडिटी हो गई है। और आपने टीवी पे ऐड देखा है, इनो जान में जान डाल दे पीते ही, है ना, 6 मिनट में असर होता है। सो दे आर बेसिस।
उनको इस तरह के सब्सटेंसेस को एंटासिड्स भी कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे परफॉर्म हो जाती है। इज इट क्लियर नाउ? चलिए अब अगली रिएक्शन आती है कि हाउ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड्स। मेटल ऑक्साइड किस तरह से वो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO हमने ले लिया, कॉपर ऑक्साइड हमने ले लिया एक बीकर में, एंड एड डाइल्यूट HCl प्लस डाइल्यूटेड HCl हमने इसमें ऐड कर दिया। नीचे भी आप देख सकते हैं यहां पर रिएक्शन, ठीक है। एंड इसको धीरे धीरे हमने हिलाना है। जब हम एसिड डाल रहे हैं तो धीरे धीरे इसको हिलाना है। तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है। और जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें क्या बना, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो ये भी सॉल्ट है। तो मेटल ऑक्साइड्स, कॉपर का ऑक्साइड है ये, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब जो मेटालिक ऑक्साइड है उसने तो रिएक्शन कर दिया, ठीक है। तो किसकी तरह रिएक्ट किया इसने, मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ किसकी तरह रिएक्ट किया, बेस की तरह रिएक्ट किया। बेस के केस में भी यही था, बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर, है ना। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। याद रहेगा आप सबको। अब नो मेटालिक ऑक्साइड की तो बात कर ली हमने, व्हाट अबाउट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, वो कैसे रिएक्ट करेंगे बेसिस के साथ। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस। तो इसमें भी हमने उसी तरह से रिएक्शन को चेक करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें से CO2 गैस पास की। तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। क्लियर? तो ये उसी रिएक्शन के जैसी हो गई जो बेस और एसिड के जैसी थी, है ना, बेस और एसिड के जैसी थी। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देखिए जस्ट उल्टा हुआ है सारा प्रोसेस, मेटल ऑक्साइड बेसिक थे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक है नेचर। So these are the reactions of metals and acids and bases। उसकी आपस में क्या रिएक्शन होती है, मेटल ऑक्साइड मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होती है, कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन होती है, मेटल्स के साथ वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब हमने देखा। नाउ एसिड और बेसिस में कॉमन क्या होता है, अगेन एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, याद रखना है, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑल एसिड्स रिलीज हाइड्रोजन गैस, ऑल एसिड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर, and they release hydrogen gas, they produce hydrogen gas। हमने देखा था रिएक्शन एसिड प्लस मेटल
हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, पोप साउंड वाला टेस्ट हमने परफॉर्म किया था। सो हाइड्रोजन इज कॉमन, हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, है ना। बट सारे के सारे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक नहीं होते। देखो दो चीजें बता रहा हूं, एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है बट ऑल कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। बात समझ आई आपको? देखिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप कोई भी सॉल्यूशन ले, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले, अल्कोहल का सॉल्यूशन ले, यहां पर HCl का सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब इसमें एक कोर्क पे 2 नेल्स कीले आपको लगा देनी है, फिक्स कर देनी है, ठीक है। और इसको 100 ml के बीकर में रख दिया हमने, और इन दोनों नेल्स के टर्मिनल्स को हमने एक बैटरी से, एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, जिसमें बल्ब लगा हुआ है, स्विच है और 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। नाउ डाइल्यूट HCl हमने इसमें ऐड किया इस बीकर में और स्विच को ऑन कर दिया। आप दूसरे केमिकल के साथ इसको रिपीट कर सकते हैं, H2SO4 के साथ कर सकते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बल्ब विल ग्लो, बल्ब जलने लगेगा, ग्लो हो जाएगा। मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। करंट फ्लोज थ्रू द सॉल्यूशन, और कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन। हमने डाइल्यूट HCl मिलाया था इसमें, एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस, डिसोसिएशन हो गया उसका। बट क्या हम सेम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे ये स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि अगर हम ग्लूकोज या अल्कोहल इसमें यूज करें तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन एंड कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से है सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, अब एसिड या बेस को वाटर में रखेंगे या डालेंगे तो क्या होगा, किस तरह की रिएक्शन वो शो करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। अभी हमने डिस्कस किया क्या कि एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस। कब प्रोड्यूस करते हैं? ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, तभी उसका डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमने एक सेटअप किया है। NaCl लिया 1 ग्राम सोलिड, ठीक है, 1 ग्राम सोलिड NaCl, ग्रेन्यूल्स यू कैन सी, ठीक है, ड्राई टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक। अब इसमें से क्या होगा? व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इसमें से गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ह्यूमिड कंडीशन में इस गैस को गार्ड ट्यूब में से पास करेंगे, ड्राइंग ट्यूब को गार्ड ट्यूब कहा जाता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड हमने डाल दिया, तो क्या होगा? इसका रिजल्ट हमें मिलेगा यहां पर कि जब HCl गैस को हम टेस्ट करते हैं, जो गैस इवोल्व हुई थी HCl गैस, उसको ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया, ब्लू
लिटमस पेपर के साथ, तो क्या हो गया, इट चेंजेस टू रेड कलर, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड कलर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वेट लिटमस लेना पड़ेगा। अगर लिया हमने ड्राई लिटमस तो क्या होगा, अभी मैंने बताया कि डिसोसिएशन कब होता है, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में। यहां अगर हमने ड्राई लिया तो क्या होगा, क्या होगा, नो कलर चेंज, क्योंकि उसका डिसोसिएशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ड्राई HCl गैस है कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड डज नॉट एक्ट एज एसिड, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में, वेट कंडीशन में ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगी, एक्ट करेगी, क्योंकि उसका डिसोसिएशन हो जाता है, हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसी बात को थोड़ा सा और आगे करते हैं कि एसिड और बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा। एक एसिड लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH, तो क्या होगा उस केस में। अभी हमने देखा एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयंस, बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, all bases do not dissolve in water। ठीक है, so bases which are soluble in water, bases soluble in water are known as alkali। उनको क्या कहते हैं, एल्कली कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एल्कली है। सो एल्कली आर सोपी, बिटर एंड कोरोसिव, और ये वार्निंग सिंबल है, डू नॉट टेस्ट और टच देम, दे कैन कॉज हार्म टू देम, दे कैन बी हार्मफुल टू यू, है ना। सो एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, डिसोसिएशन होगा, बेस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे, नेट रिएक्शन यहां पे आप देख पा रहे हो, डिसोसिएशन हो रहा है सबका। एसिड का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, HCl गैस प्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, अब आप चैप्टर में एसिड पार्ट के, बेस पार्ट के एंड की तरफ हम पहुंच रहे हैं। तो वाटर सॉल्यूशन में एग्जैक्टली होता क्या है, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो होता क्या है। यहां पर देखिए HCl एसिड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे NOH बेस आपको दिखाई दे रहा है, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म सोल्ट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या कह देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, एसिड मिलाया, बेस मिलाया, सोल्ट बन गया वाटर के साथ, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर मोलिक्यूल। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। आपने देखा यहां पे क्या हो रहा है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर में एसिड मिलाया जा रहा है, ना कि एसिड में वाटर। फर्क समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। जब किसी एसिड को या बेस को वाटर के साथ मिलाते हैं तो सच रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो, एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। धुआं धुआं सा आपको दिख रहा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो यहां पे हमने क्या किया है,
10 ml वाटर में और कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डाली, ठीक है, और उसको धीरे धीरे हिलाया। अगर आप उस बीकर का बेस टच करके देखेंगे तो गर्म लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो। आप किसी दूसरे एसिड या बेस के साथ इस रिएक्शन को रिपीट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पानी में एसिड ऐड किया जाता है, ना कि एसिड में पानी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अब देखिए क्यों आती है वार्निंग, वार्निंग साइन क्यों आता है वाटर सॉल्यूशन में। अभी जो मैंने बताया कि अगर एसिड पानी में डालेंगे, हिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे आ रहा है तो वो मिक्सिंग होती रहेगी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने एसिड में वाटर डाला, एसिड का अमाउंट ज्यादा है, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वो बाहर आके हमें हार्म कर सकता है। इसलिए ये इस तरह की वार्निंग आपको दिखाई जाती है, आपको बताई जाती है कि इस तरह की रिएक्शंस में क्या करना है, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस के केस में ये वार्निंग आपको हमेशा दिखती है। सो वी डिस्कस वन पार्ट, एसिड एंड बेसिस पार्ट हमने ऑलरेडी, अब सारे रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। अब देखिए अगर मैं इसको पूरे को समराइज करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, एसिड एक तरफ आपको दिख रहा है, बेस एक तरफ आपको दिख रहा है। क्लासिफिकेशन मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक, एसिडिटी के बेस पे कि अगर एक हाइड्रोजन आयन देता है, 2 हाइड्रोजन आयन देता है, 3 हाइड्रोजन आयन देता है, राइट। बेसिसिटी सोर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कंसंट्रेशन के बेसिस पे डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सी एसिड्स। स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक, कि आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम होता है तो वीक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की हमने देखी, बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी सॉल्ट बनाते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स के साथ वाटर प्रोड्यूस करेंगे। अब कुछ कॉमन चीजें भी हैं एसिड और बेस के बीच में, कि मिक्सिंग अगर करते हैं, हमने लास्ट में देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है, और दे आर आयोनाइजेबल, डिसोसिएशन उनका होता है। दिस इज पीएच स्केल जो सोरेनसन ने सबसे पहले दिया था। 1 to 14 की वैल्यू पे 7 न्यूट्रल है, 7 से कम वाले एसिडिक और 7 से ज्यादा वाले बेसिक होते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट हमें डिस्कस करना है, दिस ऑल्सो, एंड टाइप्स ऑफ सोल्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे, वाटर में डिसोसिएशन के बेसिस पे क्या क्या होता है, कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो हमने देखा है सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ब्रिटल होते हैं। सो वी विल डिस्कस दिस। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।